नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मरकज का माली पैकेज ज़राई शोबे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मख्तस। ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों की तरक्की के लिए हजारों करोड़ खर्च करने निर्मला सीतारमन का ऐलान। मुल्क भर में तंबाकू की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का रियासतों को मशवरा। अवामी मकामात पर थूकने पर इम्तना आयद करने मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का जोर। 10वीं जमात के इम्तिहानात के केस की तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। इम्तिहान के इनकाद पर फौरी फैसला लेने हुकूमत की अदालत से दरख्वास्त। और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जानिब से वायरस के समाजी फैलाव का जायजा लेने घर घर सर्वे। तेलंगाना के 3 अजला जंगांव, कामारेड्डी और नलगुंडा सर्वे के लिए मुंतखब। और पेश खबरें तफसील से। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के एक हिस्से के तौर पर ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों के पैकेज की तफसीलात आज मीडिया को पेश की। उन्होंने बताया कि ज़राअत के अलावा मछेरों, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की हौसला अफजाई के लिए फंड्स मख्तस किए गए हैं और उन्हें कई रियायतें भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 85% किसान छोटे और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें हर तरह की मदद करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क भर में रोज़ाना 560 लाख लीटर दूध हासिल किया जाता है। दुनिया भर में दूध की पैदावार में हिंदुस्तान नंबर 1 मुकाम पर है। फसल बीमा योजना स्कीम के तहत 6,400 करोड़ रुपए अदा किए गए। लॉकडाउन के दौरान किसानों से 74,300 करोड़ की धान खरीदी गई। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ज़राअत के शोबे की तरक्की और बुनियादी सहूलियतों की फराहमी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। The demography will have to benefit from it. So deriving from all this, today the third tranche of announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry and allied activities. So which will also have some aspects of food processing and so on. See, the largest proportion of Indian population is dependent on agriculture even now. And of all those who are dependent on agriculture, nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers, small and actually marginal farmers. That is also referred to in the economic survey of 2020. However, it always goes to the credit of the Indian farmers who, against all adversities, be it of the monsoon or sometimes unwanted drought or some crop pestilence, in spite of all that, Indian farmer has always stood up to the challenge, endured a lot, and made India reach certain global benchmarks. Very quickly, I'll tell you, you are aware that India is the largest milk producer, largest jute producer, largest pulses producer, dals, variety of dals. It's also the second largest in global numbers, second largest in the production of sugarcane, in the production of cotton, groundnut, fruits, vegetables, and also in fisheries. India is also third globally placed in the production of cereals. So really, Indian farmers have really endured but made sure that his holdings may be small, but he would give us the highest yield. So today, we want to show you some of the slides also. Very quickly, without spending much time, I'll tell you what kind of support systems that we had established during the lockdown period, so that, as you are aware, keeping all the respects for social distancing and also ensuring all kinds of preventive measures are taken during the lockdown. It goes to the credit of our workers in the fields, our farmers, the peasants and the marginal farm landholders, that they almost concluded the Rabi crop harvest. And also many of the states have been successful in somehow pushing ahead with due procurement process. The crops have been largely procured in the wheat and the rice growing areas. The process is ongoing, but it goes to the credit
of our rural population. So today, therefore, I'll also be showing you a slide a bit later on what we have done in the last 2 months to make sure that agriculture work was supported during the lockdown. Just the 2-month story. But otherwise... वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई ममालिक के सरबराहान से बातचीत कर रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और कोरोना वायरस की वबा से निपटने के इक़दाम से वाकिफ करवाया और बिल गेट्स फाउंडेशन की सरगर्मियों की सताइश भी की। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। दोनों मौज़ज़ीन ने कोरोना पर आलमी रद्द-ए-अमल और इस आलमी वबा से लड़ने के लिए साइंसी इख्तरा और R&D के बारे में आलमी तालमेल की अहमियत पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत के बहरान के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के जरिए अख्तियार किए गए बेदारी वाले नज़रिए का जिक्र किया, जो कि अवाम को मौज़ूद पैगामात देते हुए उनकी शिरकत को यकीनी बनाने पर मबनी एक नज़रिया है। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि किस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग, सफ़े अव्वल के कारकुनान के लिए एहतराम, मास्क पहनने, मुनासिब सफाई सुथराई रखने और लॉकडाउन के ज़ाब्तों का एहतराम करने के लिए अवामी कबूलियत हासिल करने में अवाम पर मरकूज और बिल्कुल निचली सतह पर काम करने वाले इस नज़रिए ने मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि हुकूमत के जरिए किए गए कुछ गुज़िश्ता तरक्याती इक़दामात जैसे मालियाती शमूलियत को वसअत देने, सेहत खिदमात की आखिरी मील तक पहुँचाने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई सुथराई और हाइजीन को मकबूल बनाए जाने, अवाम की क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफे के लिए हिंदुस्तान के आयुर्वेद के ख़जाने से इस्तेफ़ादा करने वगैरह ने मौजूदा आलमी वबा के सिलसिले में हिंदुस्तान की कार्रवाई के असर में इजाफा करने में मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के सिलसिले में आलमी कार्रवाई में तालमेल के लिए किए जाने वाले कामों समेत गेट्स फाउंडेशन के जरिए किए जाने वाले सेहत से मुताल्लिक़ कामों की सताइश की। उन्होंने जनाब बिल गेट्स से इस बात के लिए मशवरा तलब किया कि दुनिया के आम फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान की सलाहियतों और काबिलियत का किस तरह बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ज़िमन में दोनों मौज़ज़ीन ने जिन ख़ैरात का इज़हार किया, इनमें देही इलाकों में आखिरी मील तक सेहत खिदमात पहुँचाने के हिंदुस्तान के मुनफरद मॉडल, हुकूमत हिंद के ज़रिए तैयार किए गए मौसर तरीके से राब्ते का पता लगाने वाले मोबाइल ऐप का फैलाव, तहक़ीक़ के मुताबिक थेराप्यूटिक्स और वैक्सीन के प्रोडक्शन में इजाफे की हिंदुस्तान की ज़बरदस्त फार्मास्यूटिकल सलाहियत से फ़ायदा उठाना शामिल है। इनमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि खुसूसी तौर पर साथी तरक्की पजीर मालिक के फ़ायदे के लिए आलमी कोशिशों में ताउन की हिंदुस्तान की ख्वाहिश और सलाहियत के पेश नज़र हिंदुस्तान के लिए अहम है कि इसको आलमी वबा के सिलसिले में कार्रवाई पर तालमेल के लिए जारी आलमी बातचीत में शामिल किया जाए। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने यह मशवरा भी दिया कि गेट्स फाउंडेशन कोविड के बाद की दुनिया में उभरने वाली तर्ज ज़िंदगी की ज़रूरी तब्दीलियों, इक़्तिसादी तंजीम, समाजी रवैये, तालीम और सेहत, देख रेख की फराहमी और मुतालिका टेक्नोलॉजी के चैलेंजों जिनको हल करने की ज़रूरत होगी का तज्ज़िया करने में क़यादत करे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपने तजुर्बात की बिना पर ऐसी तज्ज़ियाती मश्क़ में ताउन करने में खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर उरूज पर है और अब ये वबा के सबसे ज़ायद केसेस वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मुकाम के साथ ही आलमी वबा के मरकज़ चीन के करीब पहुंच गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,967 नए केसेस सामने आने से मुतासिरीन की तादाद 81,000 से ज़ायद हो गई। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमा की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब तक 81,970 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं और 2,649 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 27,920 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं और इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासर हुआ है और उसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 27,524 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 1,019 अफराद हलाक हो चुके हैं और 6,059 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इक़दामात के तहत मुल्क भर में तंबाकू की अशिया की फरोख्त पर इम्तना आयद करने की ख्वाहिश की है। उन्होंने तमाम रियासतों और मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाकों में तंबाकू की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मशवरा दिया। इसी तरह अवामी मकामात पर थूकने पर भी पाबंदी लगाने पर जोर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट से 10वीं जमात के इम्तिहान के इनेकाद की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है और इस सिलसिले में फौरी तौर पर कानूनी चाराजोई की अपील की है। एडवोकेट जनरल प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाई कोर्ट में अपील दायर की। तलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र इम्तिहान के इनेकाद की इजाज़त देने हाई कोर्ट से अपील की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स के मशवरे से इक़दाम उठाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समाअत 19 मई को होगी।
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2020 और 21 के लिए मरकजी कैंपस हैदराबाद और दीगर सेटेलाइट कैंपस लखनऊ और श्रीनगर के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन CTEs और पॉलिटेक्निक्स के लिए रेगुलर कोर्सेस में ऑनलाइन दाखिलों का ऐलान किया है। उर्दू मीडियम में आला तालीम फराहम करने वाली मुल्क की यह वाहिद यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता साल हेडक्वार्टर में बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के तहत मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के 2 नए कोर्सेज मुतारिफ किए गए थे, जिनमें दाखिला मेरिट की बुनियाद पर दिया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 10 अगस्त मुकर्रर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट इम्तिहान में शिरकत करने वाले दरख्वास्त गुजारों को अपने फॉर्म में तब्दीली का एक और मौका फराहम किया है। मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट मुनक़िद होता है। NTA ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के तनाजुर में यह आखिरी मौका है। उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म में अपनी तस्वीर और इम्तिहानी मरकज तब्दील कर सकते हैं। चूंकि मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के समाजी फैलाव के इम्कानात का जायजा लेने के लिए तेलंगाना के 3 अजला का इंतखाब किया गया है, जहां इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 3 अजला में घर घर सर्वे करने का फैसला किया है। यह सर्वे रियासत के 3 अजला जंगांव, कामारेड्डी और नलगुंडा में किया जाएगा। हर जिले में 10 मुआवजात में 18 था 40 साल की उम्र के अफराद के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3 अजला में 30 मुआवजात में यह सर्वे किया जाएगा। रियासती हुकूमत के ताउन से हैदराबाद में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये सर्वे अंजाम देगा। इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हेमलता ने ये बात बताई। एक दौर में जंगल हरा भरा रहता था और हर तरफ जंगली जानवर दिखाई देते थे, लेकिन आज जंगली जानवरों का शिकार करने वाले जंगलात की अशिया की स्मगलिंग करने वालों से जंगल तबाह हो रहे हैं। कई जंगलात में दरख्त काट दिए जा रहे हैं। जंगलात को बचाने के लिए और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से दिन रात जदोजहद की जा रही है और अवाम में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शोर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत से जंगली जानवरों को बचाने के लिए पानी की सरबराही भी अमल में लाई जा रही है। मुल्को जिले में 70% जंगलात पाए जाते हैं, जहां पहाड़ों और जंगलों में कई किस्म के जंगली जानवर रहते हैं। घने जंगलात में सैकड़ों किस्म के जंगली जानवर पाए जाते थे, लेकिन इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। जंगलात के काट दिए जाने से जंगली जानवर मर रहे हैं। మనకు ఏటూరు నగరం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఏరియా కూడా మన ములుగు జిల్లాలో ఉంది. సో శాంక్చురీ ఏరియాలో అనేక రకాల వైల్డ్ లైఫ్ కూడా ఉండడం వల్ల మనం సమ్మర్ సీజన్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా వైల్డ్ లైఫ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన వన సంపద వీటి ప్రొటెక్షన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ముందుగా గ్రామాల్లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ కండక్ట్ చేశాం. కళాజాతర వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. ఫైర్స్ కి సంబంధించిన అవేర్నెస్ విలేజెస్ లో అవన్నీ చేపట్టడం కూడా జరిగింది. అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోలీస్ వారి సహకారంతో కూడా మనం డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొటెక్షన్ మీటింగ్ లో కూడా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కానీ అటవీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద మనం నిరంతరంగా వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ తో వాళ్ళ సహకారం కూడా తీసుకుంటున్నాం. అయితే మనకు సమ్మర్ లో వన్యప్రాణులకు నీటి అవసరాల కోసం నీటి కుంటలు, సాసర్ పిట్స్, సీసీ రింగ్స్, సోలార్ బోర్వెల్స్ వంటివి మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీటికి అదనంగా ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ సప్లై మనం వాటర్ ట్యాంకర్స్ ద్వారా కంటిన్యూస్ గా ఈ సాసర్ పిట్స్ ని నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ 2-3 డేస్ కి ఒకసారి వాళ్ళు ఇవి నింపుతూ ఉంటారు. అండ్ ఫారెస్ట్ స్టాఫ్ కూడా కంటిన్యూస్ ఫుడ్ పెట్రోలింగ్ అవి చేస్తూ ఈ వాటర్ సోర్సెస్ దగ్గర వైల్డ్ లైఫ్ మూవ్మెంట్ కానీ లేదా పోచర్స్ వేటగాళ్ల మూవ్మెంట్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ అవి డిటెక్ట్ చేసే విధంగా కంటిన్యూస్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్. ఎక్కడైనా ఉచ్చులు కానీ ఏవైనా కనిపించినా వేటగాళ్ళ ఆచూకీ తెలిసినా కానీ ఇమీడియట్లీ వాటి మీద తగిన ఎంక్వైరీ చేసి యాక్షన్ తీసుకునే విధంగా స్టాఫ్ అంతా చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ కోవిడ్ టైంలో మన స్టాఫ్ కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించి అడవిలోకి వెళ్లడం, మన శానిటైజర్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ గా వాడడం, ఎక్కడ కూడా స్టాఫ్ గుమిగూడే ప్రయత్నం ఎక్కడ చేయట్లేదు. అండ్ స్టాఫ్ ద్వారా వైల్డ్ లైఫ్ కి కోవిడ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి స్టాఫ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ కి వెళ్లే ముందు వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా శానిటైజింగ్ చేసుకుని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ విధి నిర్వహణ అనేది మన దగ్గర నిర్వహిస్తున్నారు. आत्मनिर्भर भारत स्कीम के दूसरे मरहले के तहत माइग्रेंट लेबर
किसानों और छोटे ताजरीन की बहबूद के लिए 3,16,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है, जिस पर वनपर्ती जिले मुस्तकिल में माइग्रेंट लेबर्स में राशन कार्ड्स के बगैर भी 2 माह का राशन तकसीम करने का फैसला किया गया। वनपर्ती में तामीर होने वाले हॉस्पिटल में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के लेबर्स ने मरकज के इस फैसले पर मसरत का इजहार किया है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। इधर डिग्री कॉलेज वनपर्ती पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास काम करते हैं। कल भारत सरकार ने अच्छा निर्णय लिया हम गरीब लोगों के लिए, जो बाहर से आया है उनके लिए राशन देने के लिए, राशन कार्ड नहीं है फिर भी देने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दिया। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गवर्नमेंट सरकार ने, इसके लिए गवर्नमेंट सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तेलंगाना में हम आए हैं काम करने के लिए, वनपर्ती राज्य में रहते हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है कि 2 महीने का राशन देने के लिए, तो हम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो हम लोगों को राशन फ्री भी देगा, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तेलंगाना राज्य का वनपर्ती जिला है, वहाँ काम करने के लिए आए हैं और जो है कल सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। जो बाहर से मजदूर आए हैं उनके लिए जो राशन कार्ड नहीं है फिर भी राशन दे रहा है, 2 महीने तक राशन देने के लिए निर्णय लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान परेशान हाल गरीब अवाम को गरीब कल्याण पैकेज के जरिए मरकजी हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है। मौजूदा हालात में मरकजी हुकूमत गरीब कल्याण पैकेज के नाम से 1,70,000 करोड़ रुपए जारी कर रही है, जिसके तहत उज्ज्वला गैस सिलेंडर 3 माह तक मुफ्त में दिया जा रहा है। मुल्क भर में 8 करोड़ खवातीन में गैस मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं वरंगल रूरल जिले के तोपनापल्ली गांव में 2,000 गैस कनेक्शन हैं, जिनमें 988 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। अप्रैल, मई और जून 3 माह तक उज्ज्वला कनेक्शन रखने वालों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు ధన్యవాదాలు। కరోనా వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యాస్ సహాయం చేసి మమ్మల్ని కష్టంలో ఆదుకున్నందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మా ధన్యవాదాలు। మాకు మంచి ఇంట్లో ఉండి మేము గ్యాస్తో నడిపించుకుంటాం సార్, గ్యాస్ ఇచ్చినందుకు మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు। ఈ కరోనా వల్ల మాకు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము, ఈ ఫ్రీ గ్యాసులు 3 గ్యాసులు వస్తున్నాయి, ఇంట్లోకెళ్ళి వెళ్ళకుంటున్నాం, మాకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి। మాకు లాక్డౌన్ వలన ఇంటి దగ్గర ఉండే పరిస్థితి వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు మాకు 3 సిలిండర్ గ్యాస్ ఇచ్చారు, మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చాలా ధన్యవాదాలు। మేము ఈ కరోనా వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాము, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నరేంద్ర సార్కి చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए अब होगा स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि पोती रेड्डी पाड़ू प्रोजेक्ट को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह तैयार है। इससे पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। महबूबनगर जिले मुस्तकिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि पोती रेड्डी पाड़ू के मामले में सियासी जमातों को अपनी सियासी वाबस्तगी को दूर रखते हुए मुत्तहिद होने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी తెలంగాణ ప్రాంతానికి సాగునీటి విషయంలో జరిగినటువంటి అన్యాయము, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి వివక్ష మూలంగానే తెలంగాణ ఉద్యమం ముందుకొచ్చింది। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో సాగినటువంటి ఉద్యమమే మొత్తం తెలంగాణ జాతిని ఏకం చేసి మనం స్వరాష్ట్రం సాధించుకున్న సంగతి లోకానికంతా తెలుసు। ఇవాళ మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరో చరిత్రలో ఆయా సందర్భాల్లో వాళ్ళ పాత్ర ఏందో వాళ్ళు మర్చిపోయినా ప్రజలు మర్చిపోలే, చరిత్రలో నిక్షిప్తమై ఉంది। తెలంగాణ నీళ్లు నగ్నంగా జలదోపిడీ జరిగి ఇతర ప్రాంతాలకు పోతుంటే జలదోపిడీదారులకు సద్దులు మోసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరో ప్రజలకు అందరికీ తెలుస్తుందట। తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిందే మీరు కదా। ఆంధ్రోళ్ళు వాళ్ళ ప్రాంతానికి
తాము న్యాయం చేసుకోవాలని సంకల్పించి వాళ్ళు ఒక పని చేస్తే అది వాళ్ళ దృష్టికోణంతో చూసినప్పుడు అది వాళ్ళకు సమర్థనీయమేమో కానీ వాళ్ళు చేసిన పనిని బహిరంగంగా సమర్థించినటువంటి సన్నాసులు మీరు కదా. రాష్ట్రమే వద్దు బాగుపడితే చాలని మాట్లాడింది కొందరు. వైఎస్ పచ్చగా చేస్తున్నాడు మొత్తం, ఇక ఇంత పచ్చగా చేసినా కదా ఇంకో రాష్ట్రం అవసరమేముందని మాట్లాడిన వాళ్ళు మీరు. ఆయన మొదలుపెట్టిన కాలువల కాడికి పోయి హారతులు పట్టిన వాళ్ళు మీరు. ఆయన మొదలుపెట్టినటువంటి పోతిరెడ్డిపాడు కడితే తప్పేం లేదని చెప్పి వాసన రాసినోడు ఒకడు. మా నాయకుని కంటే గొప్పగా తెలంగాణను ఎవడభివృద్ధి చేస్తాడు? కేసీఆర్ నీ వల్ల ఏమవుతుంది, మొత్తం మా రాజశేఖర రెడ్డి చేస్తాడు కదా అని ప్రగల్భాలు పలికిన వాళ్ళే మీరు. మీ కాలంలోనే పోతిరెడ్డిపాడు కట్టిరి. ఈ కట్టినటువంటి పోతిరెడ్డిపాడు ఇది అక్రమము, దీనికి నీటి కేటాయింపులు లేవు, దీనికి సిడబ్ల్యూసీ అనుమతి లేదు, ఇది నదీ పరివాహక ప్రాంతం అవతల ఉంది, దీనివల్ల మా తెలంగాణకు అన్యాయం అవుతుంది అని ఇవాళ మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కరైనా ఇలా మాట్లాడిందా? यदाद्री भुवनगिर जिले के मलकापुर में वाक़ ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, भुवनगिर इंडस्ट्रियल एरिया और चोटोपल में वाक़ बेशतर इंडस्ट्रीज ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। सनतों के मालिकीन का कहना है कि मरकज के 20 लाख करोड़ के पैकेज से उनकी सनतों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे उनकी सनतें दोबारा काम करनी शुरू होंगी और उनमें काम करने वाले वर्कर्स की तादाद को कम किए बगैर उन्हें रोज़गार पर जारी रखा जा सकेगा। हम ड्रिलिंग एंड माइनिंग इक्विपमेंट बिट्स एंड हैमर्स बनाते, एक्सपोर्ट भी करते इसका। 2004 से हमारा कंपनी है इधर। लास्ट 30 to 45 डेज में अपन ये कोरोना कारण से बहुत प्रॉब्लम फेस कर दिया। फाइनली अपना रिक्वेस्ट बहुत दिया था गवर्नमेंट लोगों को, गवर्नमेंट एग्री, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्री करके अपन को रिलैक्सेशन दे दिया। हम कंपनी चालू कर दिया, फिर भी पूरा गवर्नमेंट जो मेजर्स दिया ना वो सैनिटेशन का, इसका मास्किंग का और सोशल डिस्टेंसिंग और 33% एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट करना, ये नॉर्म्स फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली। हम देख रहे हैं अपन एम्प्लॉयज़ का सेफ्टी देखना हमारा जरूर काम है, पर ऐसा मेजरमेंट लेके सब कुछ हम। सिद्दीपेट जिले के सनतकारों ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान का खैर मकदम किया है। सनतकारों ने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और गुज़िश्ता 50 दिनों से बंद पड़ी सनतों को दोबारा खोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा मरकज़ ने बगैर किसी जमानत के छोटी छोटी सनतों को कर्ज फराहम करने की सहूलत फराहम की है। इस पर उन्होंने मरकज़ का शुक्रिया अदा किया। इंडिया में कोरोना महामारी से जो लॉकडाउन जो केंद्र ప్రభుత్వం दिया है वो इसलिए जो इंडस्ट्री है एमएसएमई इंडस्ट्री पूरा जो लॉकडाउन से 2 महीने से बंद है। उसलिए से जो गवर्नमेंट जो केंद्र ప్రభుత్వం जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रहा है उसी वजह से इंडस्ट्री अगले साल में क्या बोल दो अपन चलाने के लिए बहुत हिम्मत दिया जैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को, हमने धन्यवाद बोलता है। ये कोरोना प्रॉब्लम से जो नुकसान हुआ है ये मीडियम स्केल और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी दोनों ये 20 लाख करोड़ का जो भी पैसे दिया गया है वो पैसे से अपने को जो सिक इंडस्ट्री बना हुआ है ये मीडियम एंड स्मॉल स्केल में, ये फैक्ट्रियाँ, ये इंडस्ट्रीज ये पैसे से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और खरीद सकते हैं और चला सकते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। Due to this pathetic situation of corona, our large scale industries and mini scale industries are economically backwarded, and the central government has issued 20 lakh crores package. Under this 3 lakh crore package is issued to the industrial sector. So we are looking forward in the upcoming days to solve the economical backward situations. Thanks.
वजीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के GO 203 की तेलंगाना हुकूमत शिद्दत से मुखालिफत करती है और इससे अदम दस्तबरदारी पर तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। उन्होंने GO की इजराई के मामले में दोनों हुकूमतों के दरमियान साजबाज हो जाने बीजेपी और कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి నల్గొండ జిల్లాలో 6 లక్షల టన్నుల ధాన్యం ఈ రోజు వరకు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో యాదాద్రి భువనగిరిలో 2,20,000 టన్నులు, సూర్యాపేట జిల్లాలో 3,20,000 టన్నులు, నల్గొండలో 6 లక్షల టన్నులు మొత్తం కలుపుకొని 11,40,000 టన్నుల్ని ఈ రోజు వరకు సేకరించి రైతాంగానికి ఇప్పటికే నల్గొండలో 700 కోట్లు, सूर्यापेट जिले 350 कोట్లు भुवनगिरी। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश को 16 मई से RTC बसेस चलाई जाएंगी। कवायद को कबूल करने पर ही इन बसों में सफर करने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में फंस जाने वाले आंध्र प्रदेश के शहरियों को वापस ले जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर आंध्र प्रदेश हुकूमत फंसे हुए रहने वाले अफराद को वापस ले जाने के इकदाम कर रही है। ये उन अफराद को अपने आबाई वतन पहुंचाने के बाद जिले में वाक़ क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। क्वारंटाइन सेंटर में रहने पर रजामंद अफराद का ही बस टिकट बुक किया जा रहा है। बैरूनी ममालिक में लॉकडाउन के बायस फंस जाने वाले हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने वंदे भारत मिशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इक़दामात शुरू हो गए हैं। ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने यह बात बताई। इस प्रोग्राम के तहत 16 मई से 22 मई तक 149 तैयारों को मुख्तलिफ ममालिक रवाना किया जाएगा। तेलंगाना में 16, आंध्र प्रदेश में 9, कर्नाटक में 17, केरला में 31, दिल्ली में 22, गुजरात में 14, राजस्थान 12, पंजाब 7, बिहार उत्तर प्रदेश में 6, चंडीगढ़ में 2, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर में 1 तैयारा मुसाफिरों को लाएगा। सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कतर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, ओमान, मलेशिया, फिलिपाइन, कुवैत, जर्मनी, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल और दीगर ममालिक से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया जाएगा। हैदराबाद दूरदर्शन रिक्रिएशन क्लब के ज़र-ए-एहतमाम गरीब अफराद में चावल और दीगर अशिया ज़रूरियात की तकसीम दूरदर्शन के अहाते में अमल में लाई गई। इस मौके पर दूरदर्शन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड और डिप्टी डायरेक्टर जनरल TS रामाकृष्ण, न्यूज़ डायरेक्टर डॉक्टर K सुधाकर राव, प्रोग्राम हेड रमाकांत ने गरीबों में अशिया ज़रूरियात तकसीम किए। इस तरह लॉकडाउन में ड्यूटी अंजाम देने वाले उप्पल पुलिस स्टेशन के अमले में फल तकसीम किए गए। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर मुसलसल ओज पर है और अब तक 3 लाख से ज्यादा अफराद इसका शिकार हो चुके हैं और कोरोना मुतासिर की तादाद बढ़कर 44 लाख से तजावुज कर गई है। अमेरिका की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,12,118 केस बढ़े हैं और मुतासिरीन की मजमूई तादाद 44,27,704 हो गई, जबकि 3 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। CSSE के आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं और यहाँ 14 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। दुनिया की आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में 14 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं और 85,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और नाज़रीन, के साथ खबरों का यहीं पर ख़त्म होता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। मुझे दें इजाज़त। मरकज का माली पैकेज ज़राई शोबे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मख्तस। ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों की तरक्की के लिए हजारों करोड़ खर्च करने निर्मला सीतारामन का ऐलान। मुल्क भर में तंबाकू की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का रियासतों को मशवरा। अवामी मकामात पर थूकने पर इम्तना आयद करने मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का जोर। 10वीं जमात के इम्तिहानात के केस की तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। इम्तिहान के इनकाद पर फौरी फैसला लेने हुकूमत की अदालत से दरख्वास्त।
और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जानिब से वायरस के समाजी फैलाव का जायजा लेने घर घर सर्वे। तेलंगाना के 3 अजला जंगांव, कामारेड्डी और नलगुंडा सर्वे के लिए मुंतखब।